welcome Gur Sahab, Shubham, Pushti, Garvit. Good afternoon, Shubham, welcome, Naitik, welcome, Maithili, welcome. Good evening, ma'am. Hello, Utkarsh, welcome. Our guests are here, but we're waiting for more children to join before. So today's Jai Hind, ना? आज तो हर घर तिरंगा है, फोन पे भी तिरंगे की मैसेज आ रही है बार बार. Yes, from Colonel Rajmeet to everybody. Jai Hind from Brigadier R.S. Chikara to everybody. Jai Hind, children. Good morning. Good afternoon, Vartika. Good afternoon, ma'am. Welcome. In another 2 minutes, I'll begin. Then those who are coming in can keep joining. There are 4 more in the waiting room. Let Prasad take them in. So today we're going to talk of the man who gave us a free India, children. And that man's name was Netaji Subhash Chandra Bose. You all know that? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Whatever your history books may tell you, it is otherwise. It is because of him that India is free today and that we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav today, children. That's very, very important. Good afternoon, ma'am. Now, Schools is a EdTech startup recognized by the Government of India, helping schools and training institutes and trainers meet to verify, and generally interested parents are helped by schools. So in a nutshell, schools helps parents in searching, exploring, comparing multiple institutes and scheduling appointments also with the schools. Schools is actively encouraging learning and development with blogs. We have a unique compare. For instance, if you're searching for a school in Bangalore, so in Bangalore, I stay near Narayan Gutta. So if you look for schools nearby, we get the entire information like fee structure. You can see it on your screens, and admission details. So this simplifies the search for parents. And we also hold a lot of webinars and events here. You all are a part of this. This is happening. The Jai Hind series is continuing in August. And even in September, we get you a lot of medalists from the games, sports games, CWG. Many leaders from education sector and other people have participated in this. So here you can see all these schools: Kabira, Hello Kids, Olive, and Cherry Cart, El Santos, and you can compare their fee structure and see you have Delhi Preschool also showing up. So here we have a lovely compare feature where the parents can compare which school is next to their house and which school has better facilities, giving art, music, extracurricular activities, what is the tuition fee structure of these. So you can see, you get to know the school strength, classroom strength, establishment, smart classes, co-curricular activities, everything in a nutshell on our page. And the CEO of schools is Mr. Srinivas ji, and it is his idea to start this fish tank. You all have heard of a Shark Tank. So this is called the Fish Tank series, where we are having Jai Hind series today. And before I introduce our very, very eminent guest today, thank you, Prasad. Let me please give you a brief about Netaji. So some people write history with a pen, but some by their might. But if ever there was a man who wrote history by his blood, courage, and sheer determination, it was Subhash Chandra Bose, Netaji. His motivational leadership inspired thousands of Indians to die for the motherland, and his Indian National Army shook the empires of the mighty British nation. He said, "Give me blood and I'll give you freedom." He is known as Netaji and he is our icon. And today we celebrate 125 years of Netaji, who dared to dream of a dream that appeared a mirage to hapless millions. And he played a vital role in advocating for students, youth movements, and women. A great leader, one of the greatest that India has got, and we owe this freedom to him. तो मेरा सभी को निवेदन है कि एक बार सिर झुक के आप लोग नेताजी को प्रणाम करें, सिर झुका के। धन्यवाद। एंड हमारे साथ जुड़े हैं आज दो बहुत ही खास मेहमान who will talk about their experiences and how Netaji influenced their lives. We have Colonel Rajmeet Singh here with us. Namaste and welcome. And we have the very eminent, the very well-known Brigadier R.S. Chikara, who is also the chairman of the Netaji Trust, INA Trust. बहुत बहुत स्वागत है आपका, Brigadier Chikara.
बहुत बहुत स्वागत है कर्नल राजमीत आपका। यू ऑल्सो हैड decades of Thank you so much. फाइटिंग। नमस्कार। तो पहला सवाल मैं आपसे लूंगी, ब्रिगेडियर चिकारा, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ जो आज जुड़े हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे नेताजी के बारे में, जिससे इन्हें ज्यादा समझ आए, उस लीडर के बारे में जिसने हमें ये आजादी दी। सर। बच्चों, आपने एक बहुत मशहूर गाना सुना होगा, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ये गाना हमारे बचपन का गाना है। तुमने शायद आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत मशहूर हुआ था। इसका कहना ये था, इस गाने का अर्थ, कि गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से हिंदुस्तान को आजादी दी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो दरअसल कहानी जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। नेताजी से पहले महात्मा गांधी इस देश के बड़े नेता थे और उन्होंने सारे देश के अंदर एक भावना जगाई थी कि हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन आज़ादी हमें उनके कारण नहीं मिली है, ये आज हिस्ट्री ने प्रूव कर दिया है। दरअसल हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी और उस लड़ाई को आते 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 1947 में जाकर के जब आज़ादी मिली, तो इस अंग्रेजों के शासन के कफन में आखिरी कील जो गाड़ी गई वो नेताजी ने गाड़ी थी। नेताजी ने देश के बाहर जाकर हिंदुस्तानियों की एक 60,000 की एक फौज खड़ी की थी और एक समझौता किया था जापान के साथ कि हम मिलकर के अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी आदि से लड़ाई करेंगे। इसके दो हिस्से होंगे। जापानियों का एम रहा एशिया को आज़ाद कराना और हमारा एम है हिंदुस्तान को आज़ाद कराना। ये समझौता होने के बाद दोनों सेनाओं ने, यानी इंडियन और जापानीज आर्मी ने लड़ाई की तैयारी शुरू की। सन 43 में सिंगापुर में नेताजी ने इस INA, इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली और इस आर्मी को लेकर के चले थाईलैंड और म्यांमार, यानी बर्मा, पुराना बर्मा, आज का म्यांमार, उधर से होते हुए ये हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर आए और उन्होंने वहाँ 2-3 बहुत बड़ी मशहूर लड़ाइयाँ लड़ी। पाल और कोहिमा की लड़ाइयाँ दुनिया की सबसे बड़ी और घातक लड़ाइयाँ वहाँ पर लड़ी गई, जिसमें जापान की फौज और इंडिया की INA, ये दोनों ने मिलकर देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी आहुतियाँ दी, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। इस फौज में, INA में 2 तरह के लोग थे। एक तो वो सिपाही थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, जिन्होंने सरेंडर कर दिया था जापानीज आर्मी को, उनके प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से ला करके और INA में दोबारा भर्ती किया गया। दूसरे वो लोग थे जो देश से गए हुए, यानी हिंदुस्तान से गए हुए लोग, जो मजदूरी के लिए वहां भेजे गए थे अंग्रेजों द्वारा। उन्होंने भी फौज को बड़े चाव से ज्वाइन किया, बहुत हिम्मत से वो लड़े और इसमें शामिल रहे। कोहिमा की लड़ाई ऐसा टाइम था जब बहुत नजदीक हम अपने ध्येय के पहुंच गए थे, लेकिन मौसम की खराबी
और सही टाइम पर रसद न पहुंचने के कारण, यानी खाने पीने का सामान खत्म हो गया, लड़ाई का सामान खत्म हो गया, उस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाए कोहिमा से। अगर कोहिमा से थोड़ा सा भी आगे बढ़कर 2 दिन हम अगर वहां पहुंच जाते रेलवे लाइन के पास, जो कि आसाम में गुवाहाटी से लेकर के और तिनसुकिया वगैरह तक जाती है, तो इस फौज का जो सामान था, साजो सामान था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, वो हमें मिल सकता था। और अगर वहां तक हम पहुंच जाते तो उसी दिन हिंदुस्तान आजाद हो जाता, या उसी साल हो जाता, उसी महीने हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश एक तो ये कारण हुआ कि हमारे पास रसद रही नहीं, और दूसरा कारण ये रहा कि एकदम से बहुत जोर की बारिशें शुरू हो गई, जिससे कि सड़क पर आवागमन बहुत खराब हो गया। कच्ची सड़कें होती थी उन दिनों में, तो उन कच्ची सड़कों में आगे बढ़ना या पीछे जाना, कहीं भी जो आमदोरफ्त थी वो बड़ी कम हो गई। तो इस कारण लड़ाई तो आईएनए नहीं जीत पाई, लेकिन हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए ये एक बड़ी कोशिश थी। बाद में जब अंग्रेज दोबारा से जीत गए लड़ाई को, तो ये फौज जो थी ये अंग्रेजों के काबू में आ गई दोबारा से। और उस वक्त उनका, अंग्रेजों का ये इरादा था कि इस फौज पर मुकदमा कर चलाया जाए, इस फौज के लीडर्स पर मुकदमा चलाया जाए और उस तरह से इनकी बेइज्जती की जाए और इनको सजा दी जाए। लेकिन जब ये राज जनता पर खुला, हिंदुस्तान की जनता को पता लगा कि सब लोग कैसे उनकी आज़ादी के लिए लड़ते रहे हैं, तो सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। और उस हालत में अंग्रेजों के लिए नामुमकिन हो गया ये कि वो हिंदुस्तान में और आगे रुक सकें। यहाँ तक हालात हो गए थे कि उन्होंने भागने के लिए कई प्लान्स बनाए थे। Bilkul. Thank you so much, Brigadier Chekara, for giving us some information on INA. I'm going to come back to you a little while from now. Meanwhile, let me ask Colonel Rajmeet ji, sir, आप भी इतने डेकेड से इस लड़ाई में जुड़े हुए हैं, आपके ग्रैंडफादर आईने से जुड़े हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने ग्रोइंग अप के बारे में? कौन कौन थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? क्या क्या कहानियां सुनी आपने? थैंक यू निधि मैम। मेरे ग्रैंडफादर आईएनए में कर्नल गुलजारा सिंह थे, जो कि आजाद ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर थे जी। उन्होंने, जैसे ब्रिगेडियर चिकारा ने अभी बताया सब बच्चों को, जो इम्फाल की फेमस लड़ाई थी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। मुझे छोटे होते की ज्यादा कहानी तो याद नहीं है, लेकिन ये बहुत याद है कि दादाजी बार बार बताते थे हमको, काफी बार जब हम खाना नहीं खाते थे, छोटे बच्चे, आपको पता है, जैसे अमूमन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई नहीं करते थे या खाना नहीं खाते थे, तो जैसे ये बच्चे भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमको बोलते, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था जब 11 दिन उनके और उनकी पूरी ग्रुप को खाना नहीं मिला था। 11 दिन लगातार उनको खाना नहीं मिल पाया था, बिकॉज जैसा ब्रिगेडियर चिकारा ने बताया, मौसम बहुत खराब था, पूरा जंगली वो जोग वगैरह उनके बॉडीज पे लगी हुई थी, बिल्कुल हाइजीन फैक्टर्स जैसे आर्मी के लिए होते हैं वो सब नहीं हो पाए थे, काफी मुश्किलात थी। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, किसी भी जवान ने पीछे नहीं मुड़ा, लड़ाई में तत्पर रहा और बिल्कुल डट के मुकाबला किया। ये अलग बात है कि वो अंग्रेजों से उस टाइम जीत नहीं पाए, लेकिन आईएनए ने जो उस टाइम देशवासियों का दिल जीता, और जो डर ब्रिटिशर्स को आईएनए ने उनके जमीर के अंदर बिठा दिया, वो दैट वाज द मेजर फैक्टर जिसने हमको आजादी दिलवाई। दादाजी ने हमको काफी किस्से सुनाए थे। उसके बाद जब रेड फोर्ट ट्रायल हुए थे, कैसे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, कैसे जब वो वापस गांव आते थे, उसके बाद वो कई साल तक कलकत्ते जाते थे पुराने आईएनए के लोगों से मिलने के लिए। तो वो जज्बा मैडम, जैसे आप देखती हैं, आज भी है।
गवर्नमेंट में, पब्लिक में आईएनए के लिए जो जज्बा है, सुभाष चंद्र बोस की जो फोटो आप दुनिया जहान के दफ्तरों में पाएंगे, लोगों के ऑफिसेज में पाएंगे, लोगों के पर्सनल मतलब एक वो आइडल हैं आज के यूथ के, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि उन्होंने बिल्कुल सेल्फिश ना होकर, सेल्फलेस होकर इस आर्मी को खड़ा किया। और जैसा उन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैं इसका एज अ फैमिली हमने इसको देखा है। सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल इफेक्ट्स के 2 गिफ्ट्स हैं मेरे दादाजी के पास। एक उनका साइन किया हुआ कोम्ब, कंघी, और एक उनके साइन किया हुआ ब्रश जो होता है दाढ़ी के लिए। वो दोनों आज भी हमारे जलंधर के घर में पड़े हैं, जिन पे सुभाष चंद्र बोस का अपना साइन है। दूसरी चीज जो उन्होंने मेरे दादा को गिफ्ट किया था, वो एक कटलरी सेट था। आप मानेंगे क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इतने मुश्किल हालात थे जहां पर उनको खाना भी नहीं मिलता था, तो उन्होंने वो कटलरी सेट उनको याद दिलाने के लिए किया था कि जिंदगी ऐसे हो सकती है, लेकिन मुश्किलातों से डरना नहीं है। तो वो दोनों चीजें आज भी हमारे घर में, पुश्तैनी घर में पड़ी हैं, और उनपे नेताजी का सिग्नेचर है, मतलब मेटल पे इंग्रेव सिग्नेचर है। तो दादाजी काफी क्लोज थे उनके। कुछ और भी राज की बातें थी जो उन्होंने आज तक ना अपने बेटों को बताई ना हमें बताई। 93 में उनका डेथ हुआ था, जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी अपनी 12th क्लास करने के बाद एनडीए में चला गया था। तो मेरे जो फर्स्ट टर्म में जब हम छुट्टी पे आए, तब 6 दिसंबर को उनकी डेथ हुई थी, और पंजाब गवर्नमेंट से उनको 9 गन सैल्यूट मिला था, सब कुछ हुआ था, ये हुआ था, पुराने आईएनए वाले सब लोग आए थे वहां पर। लेकिन कुछ राज की बातें थी आईएनए के गठन में, कैसे उन्होंने क्या क्या किया था, वो चीजें इन लीडर्स ने कभी किसी को बताई नहीं। वो आज तक हम सुनते आ राज ही बनी हुई है। बहुत से लोगों को हम सुनते आ रहे हैं, बट इनके अंदर जो था वो जो गौर देने वाली बात है, जो हमने देखी है, जो अपने दादा से जो थोड़ी बहुत हमने छोटे होते बात की थी, वो ये था कि एक इनविंसिबल स्पिरिट थी, एक नेवर से डाई एटीट्यूड था, और एक कर गुजरने की हट थी, और एक अपनी अनख थी। ये 4 चीजें आज के यूथ में अगर आ जाएं तो बच्चा कहां से कहां कुछ भी कर सकता है। मैम, बिल्कुल, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि जो ग्रिट, रेज़िलियंस और डिटर्मिनेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिखाया, उसी की वजह से आज भारत आज़ाद हुआ है। और यहाँ मैं जानना चाहूँगी ब्रिगेडियर चिकारा से, जो आईएनए ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और इस ट्रस्ट के द्वारा बहुत काम हो रहा है। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, तभी भी काम हो रहा है, होता रहेगा, एक पूरे साल होता रहेगा, उसके बाद भी होता रहेगा, नेताजी के नाम को हर जगह रोशन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये आज़ाद भारत दिया है। एंड एज वी सेलिब्रेट 75 इयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये भी बताना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जी खुद लाल किले पे ब्रिगेडियर चिकारा के साथ खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया था और नेताजी की सराहना की थी। तो ब्रिगेडियर चिकारा, मैं उस मोमेंट पे आपको ले जाती हूँ पहले, जब आपने प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर किया था। क्या यादें हैं और आप कैसे देखते हैं आईएनए ट्रस्ट को, वो किस तरह काम कर रहा है नेताजी की यादों को आगे ले जाने का, चाहे वो म्यूजियम हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे स्कूल्स के प्रोजेक्ट हो, क्या कहना चाहेंगे आप? 21 अक्टूबर 2018 को वो फंक्शन था लाल किले में, जबकि आईएनए म्यूजियम का नींव रखी गई थी नेताजी द्वारा। मैं उससे भी थोड़ा पहले आपको ले जाना चाहता हूँ। 2012 में ट्रस्ट ने एक फंक्शन किया था अहमदाबाद में, जबकि श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो उस समय मैं उनसे पहली दफा जाकर के मिला था उनके ऑफिस में, और उन्होंने मुझे ये बताया था कि भाई पता नहीं तुम कितना जानते हो नेताजी के बारे में, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो ये है कि हमारी आज़ादी नेताजी ने ही दिलवाई है और हमें उन्हीं का आभारी रहना है। और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि नेताजी की जीवनी और नेताजी का संदेश ये दोनों देश के अगली पीढ़ी को पहुंचाया जाए। जब वो प्रधानमंत्री बने
तो उन्होंने उस वायदे को याद रखा। और जो टोपी मैं लगाए हुए हूँ ये रेप्लिका है आईएनए की असली कैप का, जो आईएनए वाले पहनते थे। तो इन्होंने मेरे से रात को 9 बजे मुझे मैसेज मिला कि उनको ये टोपी चाहिए 21 अक्टूबर के लिए। मैंने उनको टोपी भेज दी और सवेरे जब वो टोपी पहन के आए तो मेरी टोपी और उनकी टोपी एक जैसी थी। तो मुझे लगा कि मेरा जो जीवन का काम है बहुत सफल हो गया है। ये उन्हीं के कारण है आज कि जो हो रहा है और जो हो जाएगा आगे भी। बहुत कुछ होना है, बाकी शुरू हो गया है सारा काम। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि नेताजी का नाम सबसे ऊपर आएगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। हिंदुस्तान की वो हिस्ट्री जिसको बिगाड़ दिया गया है लोगों द्वारा। जी बिल्कुल। कर्नल साहब ने 2 बातें कही कि बच्चों के लिए नेताजी क्या छोड़ के गए। बच्चों के लिए प्रेरणा कि बच्चों जीवन में अपना एक ध्येय बनाना है और उस ध्येय पर दृढ़ता से खड़े रहना है। उस ध्येय को पाने के लिए, पूरा करने के लिए आपको पूरी हिम्मत और हर एक मुश्किल में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना डगमगाना नहीं है। एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान में नेताजी वो पहले नेता थे जिन्होंने जेंडर में कोई डिफरेंस नहीं देखा। उन्होंने ना सिर्फ जवान आदमियों को लिया बल्कि जवान औरतें भी इस इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई। उनको हम चैंपियन ऑफ जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। वो जो तबका है वो आज देखिए कहाँ कहाँ हिंदुस्तान के किस किस काम में वो लगी हुई हैं। लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, और इस देश को बहुत आगे ले जाने में उनका बड़ा योगदान रहेगा। Bilkul. He was a pioneer of women's movement and he was the first to introduce women in the Indian National Army. तो बहुत ही बड़ा स्टेप था, बहुत विजनरी थे। बच्चे, आपको इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है। होप यू आर ऑल लाइकिंग इट। यू कैन से यस लाउडली। Yes, ma'am. Yes, This is ma'am. not going to be ma'am. taught in your history Yes, books. So remember ma'am. that. We're going to come to why Yes, Netaji left the civil service also. I'll ask Brigadier Chikara to explain that in a while. I would now like to ask you, Colonel Rajmeet, you are in the army. You are leading a life. You have led a life full of tribulations and trials. आप op पराक्रम में भी थे. एंड वहाँ माइंस होती हैं हर स्टेप पे डेंजर होता है। कुछ बच्चे यहाँ से जरूर फौज में भी जाना चाहेंगे, तो आप किस तरह कहेंगे उनको कि राष्ट्र के क्या मायने हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त है तो राष्ट्र की बात करनी बहुत जरूरी है। बेशक बेशक मैम, मैं तो यही कहना चाहूंगा। मेरी फैमिली का मैं 4th जनरेशन हूँ आर्मी में, और हमारी फैमिली में बच्चा आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में ही जाते हैं। चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, मतलब गर्ल या बॉय। सो आप ये नहीं मानेंगी कि मेरी एक भांजी जो आज यूएस एयरफोर्स में सर्व कर रही है, जो हमारी 5th जनरेशन है, लेकिन वो क्योंकि यूएस में पैदा हुई थी तो वो यूएस की एयरफोर्स में तैनात हैं। How wonderful. तो ये हमारी फैमिली का हमेशा से रहा है कि हम इसमें रहेंगे। मैं बच्चों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, आर्मी की जो यूनिफॉर्म है ये आपको कोई कॉर्पोरेट सैलरी नहीं देती है, कोई कॉर्पोरेट ऐशो आराम नहीं देता है, लेकिन आपको जो जज्बा ये देती है, जो ये यूनिफॉर्म का जो जैसे मैंने पहले कहा था, जो अनक होती है और जो एक देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो भावना है, वो आपको इस यूनिफॉर्म में मिलती है। चाहे आप बेसिकली आर्मी में जाएं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीएपीएफ में जाएं, पुलिस में हो, कोई भी आप बेल्टेड सर्विस में हैं, देश के लिए आप किसी भी यूनिफॉर्म को पहनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आर्मी का सिर्फ ये है क्योंकि आप दुश्मन से लड़ते हैं, और आप जिस दिन आप साइन अप करते हैं आर्मी का, जिस दिन आपको प्रेसिडेंट, इस देश के प्रेसिडेंट कमीशन करते हैं, उस दिन आपकी जान,
आपके नेशन, आपके देश के नाम दी जाती है। इसका मतलब मैंने इतने ऑपरेशन किए हैं कश्मीर में, मणिपुर में, नागालैंड में। जिस दिन हम जाते थे, हम सब अपने सर पे कफन बांध के जाते थे। हमें पता था ये आज आखिरी दिन या आखिरी रात हो सकता है हमारा। हमारी फैमिलीज को ये बात पता है, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बहन भाई को, सबको ये बात पता होती थी। हर रोज खतरा हमारे सर पे था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर जो देशभक्ति ये यूनिफॉर्म जगा देती है, और जो आपको एक जज्बा एक लेवल पे पहुंचा देता है, वो जज्बा आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो मैं बच्चों से सिर्फ यही इल्तिजा करूंगा कि आपकी जो लाइफ के पहले 20 साल हैं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। जो ये वीर एंड ये जो अग्निवीर स्कीम शुरू की है, इसमें हर एलिजिबल लड़के को या लड़की को एक चांस दिया जाएगा। जैसे कि यूएस आर्मी में है, इजराइल की आर्मी में है, अच्छी बेहतरीन आर्मीज में है कि आप 3 से 4 साल आप एक फौजी टेन्योर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिट पाए गए तो आपको पूरी नौकरी करनी दी जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, और अगर आज का बच्चा 4 साल ये वर्दी पहन लेगा तो जिंदगी भर उसको डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और एक जज्बा जो एक फौजी का होता है, वो उसके अंदर हमेशा के लिए रहेगा। तो आप कॉर्पोरेट सैलरी से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मैं नहीं बोलता हूँ आज मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ। मैंने फौज की में 21 साल नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त के लिए चुना। आज मैं कॉर्पोरेट में हायर एजुकेशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। लेकिन फौज का हर एक दिन अगर आप मुझे बोले वापस जाके, तो मैं वही चीजें फिर से करना चाहूंगा। एब्सोल्युटली। यहाँ मैं जानना चाहूंगी आपसे ब्रिगेडियर चिकारा सर, ये बताएं कि नेताजी में जो राष्ट्र के लिए जज्बा था वो किसी में नहीं देखा गया। वो आईसीएस में थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स सर्विस से इस्तीफा दिया, रिजाइन किया और 1 रुपया भी नहीं लिया। इसके बारे में आप किस तरह बच्चों को समझाएंगे? बातें किताबों में नहीं दी जाती सर। हर एक आदमी अपनी भलाई के लिए, अपनी तरक्की के लिए कई रास्ते अपना सकता है। उनमें से सबसे मुश्किल जो निभाने वाला रास्ता है वो है देशभक्ति का। नेताजी के मन में जो देश को आजाद कराने की लौ लगी हुई थी, वही लौ नेताजी के माध्यम से, उनकी कहानी के माध्यम से आपको अपने मन में लगानी है। जरूरी नहीं है कि आप सब नेताजी की फौज में और आज की फौज में जाएं, लेकिन जो देश प्रेम की भावना है, चाहे आप आईएएस में जाएं, चाहे आप कॉर्पोरेट में जाएं, कहीं भी जाएं, आप उस भावना को मत छोड़िएगा। आप इस देश में किस लिए हैं, इस देश के नागरिक होने में आपकी क्या ड्यूटीज है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने भाषण में कहा कि ये जरूरी है कि हर एक सिटीजन इंडिया का अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको ठीक से समझे, और वो ड्यूटीज जो हैं वो एक अच्छा नागरिक हमेशा लेकर के चलता है। आपको वो अच्छा नागरिक बनना है, आपको वो देश का अच्छा नागरिक बन के जहां भी आप हैं, देश का उद्धार, देश की तरक्की, उसमें सहयोग देना है आगे बढ़ करके। यही उनका एक बड़ा संदेश था, इसको भूलना मत। बिल्कुल। कल राजमीत आपने बात की अपने सफर की जो आपने आर्मी में किया, तो यहाँ आज प्राइम मिनिस्टर ने सभी को संबोधित किया, जय जवान जय विज्ञान जय अनुसंधान भी कहा। ये लाइनें हमने पहले सुनी हुई है वाजपेयी जी के थ्रू, और लाल बहादुर शास्त्री ने ये खिताब भी दिया था। तो यहाँ उन सोल्जर्स के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी वहां रह चुके हैं एलएसी में, या आपका भी ब्रश हो चुका है पीएलए के साथ। तो जो 15 फीट बिलो इन दैट बिटर कोल्ड सियाचिन ग्लेशियर पे किस तरह की लाइफ होती है वहां, इससे भी रूबरू कराएं बच्चों को। हाँ जी, मैंने यहाँ पे आपको सब बच्चों को बहुत एक अच्छा पिक्चर दिखाया है वर्दी का,
जब आप देखते हैं हम लोगों को परेड में, आपको बहुत अच्छा लगता है। या फिल्मों में देखते हैं। हाँ, फिल्मों में देखते हैं। आमिर खान को आपने देखा अभी ये लेटेस्ट पिक्चर में, तो लोग सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया है नौकरी, ग्लैमरस है। हाँ, ग्लैमरस नौकरी है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बात बताई थी कि 11-11 दिन तक ऐसा भी हो सकता है कि आपको खाने को कुछ ना मिले। हमको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, सर्वाइवल ट्रेनिंग, जिसमें हमको 72 घंटे कुछ खाने को नहीं दिया जाता। कमांडोज के दौरान हमें 18 से 20 फीट से फ्री फॉल करना पड़ता है विदाउट एनी सेफ्टी इक्विपमेंट। कोई रस्सा, कोई पैराशूट, कोई हमारे पास कुछ नहीं होता है, और वहां से हम फ्री फॉल करते हैं पानी के अंदर। 160 फीट पहाड़ी पर भी चढ़ते हैं। तब हमें ट्रेनिंग के दौरान इन सब चीजों का मतलब नहीं समझ में आता था। हमें लगता था क्यों इतना हमको रगड़ा मिल रहा है, क्यों हमारी बॉडी का इतना इतना टफ क्यों हमको ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस दिन मैं कमीशन होके अपने पहले साल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडो चाइना बॉर्डर तवांग में अपना कंपनी का मेरे को पूरा भार मिला, उस टाइम मेरे को समझ में आया, जैसा मैम ने बताया, वहां पर करीब 17,000 फीट पे टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री होता था। 0, कभी -1, कभी -2, इतना होता था। सियाचिन जितनी ठंड नहीं थी, लेकिन काफी ठंड थी, और हवा ऐसी तेज चलती थी, बुरी हालत हो जाती थी। उस दौरान चाइना ने कारगिल के दौरान 5 जगह पे, हमारी 5 जगह पे नॉर्थ ईस्ट में अटैक किया। वहां पे सिर्फ ये फर्क होता है कि वो नंबर्स बहुत में आ जाते हैं, फायरिंग नहीं होती। लेकिन अगर वो आपके इलाके में आ गए तो फिर वो जाएंगे नहीं। तो इंडियन आर्मी का पूरा कंसंट्रेशन इस पे होता है कि उनको अंदर नहीं आने देना है, उनको अपने इलाके को ऑक्यूपाई नहीं करने देना है। तो मैं और मेरी पूरी टोली, जैसे जिसमें पूरी एक प्लेटून थी 36 लोगों की, हम सब ने 2 महीने खाने पीने की कोई चिंता नहीं की। चाइनीज आर्मी को उन 3 लोकेशंस के अंदर नहीं आने दिया। मिराला पास, थांगला पास और तवांग के एरिया में, ये आपने कहीं पढ़ा होगा, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सब बच्चे। तवांग हमारे अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जहां पे इंडियन आर्मी ने पूरा अपना पोजीशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मजबूत बना रखा है। तो 99 में अगर चाइनीज वहां अंदर इतने नंबर में नहीं आ सकते, वो मेरे और मेरे जवान को एक मौका मिला उनको रोकने के लिए। लेकिन उस दौरान हमने कभी चिंता नहीं की हमें खाना मिला कि नहीं, ब्रेकफास्ट आया कि नहीं आया, लंच आया कि नहीं आया। हमारा एम बिल्कुल क्लियर था कि आज के दिन किसी भी हमारे देश का एक भी सेंटीमीटर चाइनीज आर्मी नहीं ले पाएगी। अब उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। उस समय हमें अपनी ट्रेनिंग का मतलब पता लगा, उस समय हमें अब सारी हार्डशिप्स का पता लगा जो कि हमको एकेडमी में ट्रेनिंग में दी जाती हैं। और उस समय हमको पता लगा कि इंडियन आर्मी को क्यों देश की दुनिया की बेहतरीन आर्मीज में से काउंट किया जाता है। हमारे सोल्जर कोई अमेरिकन सोल्जर्स की तरह नहीं है कि बहुत हीरो टाइप लगते हैं, या बहुत मसल्स हैं, बहुत अच्छी बॉडी बनाते हैं, ऐसे नहीं है। सिंपल से लोग हैं, दाल रोटी खाते हैं, सिंपल सी लाइफ जीते हैं। लेकिन जिस दिन संकट आएगा देश पर, उस दिन आप चाहे जिस भी रेजिमेंट का सोल्जर है, जिस भी स्टेट का सोल्जर है, वो एकजुट हो जाएगा। एक छोटी सी बात मेरी मैम मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे कार्यकाल के दौरान मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में भी 4 साल था, जहां पे मैं पूरे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ऑपरेशंस देखता था। तो पार्ट ऑफ माय ड्यूटी वीआईपी सिक्योरिटी भी थी, जिसमें हम 18 से 19 जो इंपॉर्टेंट लोग थे इंडिया के, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी थे। एंड आप मानेंगे नहीं इस बात के, जब विश्वकर्मा पूजा होती है तो मैं खुद अहमदाबाद गया था एक बार, और मैंने उनको हर हथियार पे ये टीका लगाते हुए देखा है अपने आप। मतलब आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर, और जैसा कि ब्रिगेडियर चिकारा ने बोला, ये सब टीचिंग वो तो फौज में नहीं थे, उनको तो उनकी मदर से आई होगी, उनके 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 पेरेंट्स ने उनको दिया होगा, उनके बड़ों ने उनको ये सिखाया होगा कि ये जो वेपन है ये उनको गार्ड कर रहे हैं। तो उन वेपन्स को टीका लगाना, उन वेपन्स के सामने नतमस्तक होना कितना जरूरी है। तो आपको जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बताया, सिर्फ फौज की वर्दी पहन के नहीं है, देश की सेवा आप 1000 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन देश की सेवा बहुत जरूरी है। वो आपके अंदर मनोभाव होना चाहिए। उसके अलावा आप जो मर्जी करें, लेकिन आपका सर और आपकी छाती चौड़े होकर आपको बोलना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ। और आज का दिन 15 अगस्त बहुत ही शुभ दिन है। 75 साल हमारी आजादी के हम मना रहे हैं। तो आज के दिन आप लोग प्रण लीजिए
कि आप ऐसा बनेंगे कि आगे जाके आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपके नाम से जाने, और बहुत तरीके हैं आपको कुछ भी करने के। ब्रिगेडियर चिकारा, जय हिंद का नारा हमें नेताजी ने दिया। इस तरह कई और नारे दिए उन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो। आप जब लाल किले को देखते हैं आपको कौन सा नारा ज्यादा याद आता है और क्यों? देखिए, जहाँ तक मेरा खुद का ताल्लुक है, मैंने भी बचपन में, मैं जब बहुत छोटा था, प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा करता था, हिंदुस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ था, तो मैं, सौभाग्य था मेरा कि हमारे घर में एक रेडियो था। गांव के सब लोग इकट्ठे होकर खबर सुनने आया करते थे। तो कभी कभी उसी रेडियो पर ये खबर मिल जाती थी कहीं से कि भाई आज नेताजी देश को बात करने वाले हैं। वो पता नहीं कहाँ हैं, ईस्ट में थे या यूरोप में थे, लेकिन वो रेडियो पर कभी कभी बोलते थे। और छोटा बच्चा होने के नाते मेरी ड्यूटी लगती थी कि जाओ गांव में सबको बता दो कि भाई आ जाओ शाम को, आज नेताजी की का भाषण होने वाला है। तो बहुत लोग दिल से और खचाखच जगह में भर जाते थे हमारे घर में, और कम से कम 100-200 लोग इकट्ठे होकर के वो भाषण सुना करते थे। उनका भाषण ऐसा तेजस्वी था, उनकी बात में इतना दम था कि लोग सिहर जाते थे। और उसी वक्त उनके मन में ये बात आती थी कि देखिए वो नेताजी थे। मैं अभी पीछे रिटायर होने के बाद एक जगह पंचायत लगी हुई थी, तो बातचीत होते होते कुछ इनफॉर्मल बात हुई, तो मैंने लोगों से पूछा, भाई हमारे देश में असली नेता कौन है? हमारे जो पूर्ण संगमा जी थे पहले पार्लियामेंट के स्पीकर, वो इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए थे। तो उनका ये कहना था कि आज के ज़माने में जो म्यूनिसपैलिटी में बन जाता है एक नेता, कोई एमएलए बन गया तो और बड़ा नेता हो गया, वो एमपी बन गया तो बहुत बड़ा नेता हो गया। लेकिन वो कहने लगे कि भाई ऐसा है कि असली नेता हिंदुस्तान में आज तक हुआ है तो वो नेताजी सुभाष हुआ है। बाकी तो सब ऐसे ही है। बाकी तो 5 साल के लिए आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं और करते कराते कुछ नहीं है। देश के लिए काम करने वाला नेता जो है वो तो सिर्फ नेताजी सुभाष थे। एक छोटा सा मैं अपने आप को तजुर्बे की बात बताता हूँ कि ये जो 62 की लड़ाई थी, उस वक्त एक सेला पास पर लड़ाई थी। सेला पास पर मैं उस दिन सुबह वहां से लौटा जिस दिन के सेला पर अटैक हुआ, और अगले दिन हमें हुक्म मिल गया कि आप बॉम्बडिला जाओ। हम बॉम्बडिला तो कहाँ जाते, रास्ते में चाइनीज ने एक एम्बुश लगा रखा था। उस एम्बुश में मेरी जो छोटी सी पार्टी थी 20-21 आदमी की, 2 आदमियों को गोली लग गई। उसके बाद 21 दिन तक हम जंगलों में छुपते छुपाते और प्लेन्स में, आसाम के प्लेन्स में पहुंचे, और हमें 21 दिन खाने को एक एक भुट्टा मिला था। एक खेत में सूखे भुट्टे किसी झोपड़ी में रखे हुए थे, तो एक भुट्टे के 5-5 दाने हम रोज खाते थे और बाकी को बचा करके रखते थे। 21 दिन के बाद जब मैं आया तो 21 से ज्यादा किलो मेरा वेट घटा हुआ था। लेकिन हम 21 आदमी इकट्ठे रहे और बखूबी अपनी जगह पर आ गए वापस, और वो 21 किलो जो है बहुत जल्दी ही हमने वापस पा लिया। तो आपकी जो कठिनाइयां आती हैं उनको आप ऐसा न लें कि आपको कुछ हो ही जाएगा। कठिनाई आती हैं, जाती हैं। आपको हौसला बुलंद रखना है और उसको कभी छोड़ना नहीं। जी बिल्कुल। और यहाँ मैं राजवीर जी से पूछना चाहूंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप चलते चलते? फिर ब्रिगेडियर चिकारा से भी एक मैसेज लूंगी, एंड देन वी ऑलरेडी रन आउट ऑफ टाइम। क्या कहना चाहेंगे आप नन्हे मुन्ने बच्चों को कि क्या बनना चाहिए उन्हें, अगर फौज में जाना चाहें तो क्या करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए अपने राष्ट्र के लिए, खासकर नेताजी से?
बच्चों, मैं आपको सिर्फ ये बात बोलना चाहूंगा, आपको ये बात का बहुत गर्व होना चाहिए कि आप आज भारत में हैं। 21वीं सदी का भारत आज किसी भी देश से दुनिया में बेहतर है। हमारा जो पे पैरिटी है, पे पैरिटी से आप समझें कि जो आपकी तनख्वाह है, जो आपके फादर, आपकी मदर या आप कमाएंगे या आज कमा रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी देश में उसकी पे पैरिटी से ज्यादा अच्छी है। मतलब कहने का मतलब, अगर अमेरिका में भी आदमी इतने $1000 कमाता है तो वो जिंदगी नहीं जी सकता जो आप इस देश में जी सकते हैं। तो ये लोगों की बातें नहीं सुनिएगा, आप देखिए आज के डेट में रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज के डेट्स में गर्ल्स के लिए बाथरूम देखिए आप कहाँ कहाँ बन चुके हैं, आज की डेट में आप सिविक एमिनिटीज देखिए, आज के डेट में आप अपनी फौज देखिए, एयरपोर्ट्स पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए CISF तैनात है, उसको देखिए, हर पहलू पे देखिए आप। किसी नेता की, किसी पॉलिटिशियन की बातें आप सुन के गुमराह नहीं होना है, आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि दुनिया हमको कितना मानने लग गई है। और ये जो चेंजेस हुए हैं, ये आज 15 अगस्त मैं आपको दिखा रहा हूं, दुनिया में कम से कम 19 जगह पर आज इंडिया का झंडा लेजर शोज पे दिखाया जा रहा है। तो चाहे वो अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो, नायग्रा फॉल्स हो। ये एक वीडियो आज सुबह मेरे किसी जानकार ने अमेरिका से मेरे लिए भेजा था, और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया देखकर कि इंडिया का फ्लैग, हमारा अपना झंडा, भारत का झंडा कहाँ कहाँ पे लहराया जा रहा है। दुबई, एमिरेट्स, अफ्रीका, हर जगह पर। तो कुछ तो होगा हमारे देश में कि अगर एक बात काउंट की जा रही है कि पूरी दुनिया में 5 साल तक कोई लड़ाई ना हो, और उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जा रहा है, तो हमारे देश में कुछ तो होगा। कोविड की लड़ाई आपने देखा है, इस हमारे देश ने ना केवल एक दवाई का पूरा इजाद किया, सबसे ज्यादा कोविड की मेडिसिन की जो सक्सेस है वो इंडिया में है, सबसे कम कैजुअलिटीज पॉपुलेशन वाइज इंडिया में है। तो ये छोटी सी चीजें हैं, मैं आपके लिए, मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको बहुत कुछ बताता। आप बहुत अच्छे दौर में हैं, आप सिर्फ चुनिए कि आपने क्या करना है और उस करियर की तरफ दौड़िए। चाहे वो फौज है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो डॉक्टरी है, चाहे वो लॉयर बनना है, चाहे वो कॉर्पोरेट में जाना है, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बताया आपको, आप जो भी करना चाहते हैं दिलो जी जान से उस पर लग जाएं। और ये मान के चलें कि जो आपकी मदर ने, जो आपकी माँ ने आपको सिखाया है, उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। और ये बात अगर आप अपने पल्ले बांध देंगे, आप 100% सक्सेसफुल रहेंगे। हम आपके पास अवेलेबल हैं, निधि मैम के पास हमारा कांटेक्ट है, आप फ्री हो सकते हैं कभी भी बात करने के लिए। बस दिलो जान से रहिए और गर्व से कहिए कि मैं भारत का बच्चा हूं, क्योंकि अगर मैं आपकी स्टेट में होता आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता। ठीक है, बिल्कुल। एंड Thank you so much, Colonel Rajmeet. And now I'd like to request Brigadier Chikara to give a message on behalf of INA Trust, on behalf of what he stands for, and on behalf of the great leader who gave India a free India. Sir. तो बड़ा मुश्किल सवाल है निधि जी, लेकिन बच्चों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम इस देश का भविष्य हो। ये भविष्य हम नहीं शायद देख पाएंगे, लेकिन वो भविष्य तुमने ही बनाना है और तुमने ही भोगना है। तुम्हारी आगे पीढ़ियां जो है वो भोगेगी, लेकिन तुम कैसा भविष्य बनाते हो ये तुम पर निर्भर है। अगर आप एक डॉक्टर बनते हो तो मरीज के साथ कैसे आपने दिल से जुड़ करके उसकी सेवा करनी है, उसको ठीक करना है। अगर आप IAS में जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, को कितनी लगन से अपने जिले की डेवलपमेंट पूरी करते हैं। आप इन सब जहाँ भी जाएं, आप अगर दुकानदारी भी करेंगे तो उसमें कैसे आप अपने सामान को ठीक भाव में बेचेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई टैक्स मुकरेंगे नहीं। ऐसी चीजें हैं। सारे देश में जो भी करता है वही देश की सेवा है, और तुम देश की सेवा में लगो, देश को अपना मानो, तभी देश को आगे ले जाओ। बिल्कुल। और इसी के साथ जी, और इसी के साथ मैं ब्रिगेडियर चिकारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कर्नल राजमीत आपका भी धन्यवाद करती हूँ। अगर कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहता है तो जरूर पूछ सकते हैं। बल्कि मैं तो ये जानूंगी कि आज का दिन सिर्फ देश के लिए
अर्पित होना चाहिए, हमें देश को नमन करना चाहिए और सभी उन लीडर्स को याद करना चाहिए जिन्होंने देश को आज़ादी दी, खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके ऊपर आज ये प्रोग्राम रखा गया है. On behalf of the CEO of schools, Mr. Srinivas, I thank both our eminent dignitaries for joining us today, sparing their valuable time and sharing their insights. And on that note, many thanks for watching, children. Thank you so much for joining. Everybody, I request you to say Jai Hind. जय हिंद मैम. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. जय हिंद मैम. Jai Hind. जय हिंद मैम. Jai Hind, Jai Hind. जय हिंद मैम.